जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी, आज्ञा दो कि मैं सत्संग शेयर कर सकां। मैं तो ਉਹੀ ਬੁਲਵਾਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਵਾਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜਾਈ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਹਰ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਲ ਪਲ ਹਰ ਪਲ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਮਾਣੇ ਬੱਚੇ, ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਦੇ ਸੁਬਾਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਲੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣੇ ਆ, ਹਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਹਲੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। जय गुरु जी। संगत जी गुरु महाराज जी तो बहुत प्यारे हैं। संगत जी जे सबनों याद होएगा तो थोड़े दिन पहला सत्संग शेयर किया से जिस विच गुरु महाराज जी ने बुलवाया सीगा कि एक मेरी फ्रेंड है, उसका कज़न हॉस्पिटल च एडमिट है तो वेंटीलेटर ते सीगा ते गुरु महाराज जी दे जल प्रसाद दा इन्नी महिमा, इन्ना ਉਹ ਸੀਗਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਿਵਾਈਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਰਨਲ ਵਾਰਡ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਵੀਕਨੈਸ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਰਿਕਵਰਿੰਗ ਵੈਰੀ ਫਾਸਟ। ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ ਜਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੀ। ਹਰ ਸੈਟਰਡੇ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ
ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ 'ਚ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੁਲਵਾਇਆ ਕਿ ਜਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੀਵੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਬੋਟਲ ਮਿਲੀ ਜਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਗਏ ਜਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਉੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਘਰੇ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਚਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਬੋਟਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਘਰ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪੀਓ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਟ ਉਸਨੂੰ ਰੀਫਿਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਜਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚੇ ਬਚ ਜਾਵੇ ਨਾ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਇਹੀ ਉਸ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੁਲਵਾਇਆ ਉਸਨੂੰ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੀਫਿਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਉਸੀ ਐਵੇਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੋਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਧਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਉਹ ਵੀ ਉਸੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹਾਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ ਨਹਾਓ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੀਓ, ਉਸਨੂੰ ਰੀਫਿਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਜਾਓ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲਓ। ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਪੀਓ ਵੀ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਨਹਾਓ ਵੀ, ਤੇ ਥੋੜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦਰਦ ਸਾਰੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਤਾ ਕਿਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਕਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਰੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਕੁਛ ਹੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ 10-11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਜਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਫਰੈਸ਼ ਪਲਾਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਮਤਲਬ 10 ਦਿਨ 5 ਦਿਨ 6 ਦਿਨ ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ। ਬਟ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਪੌਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਘਰ 'ਚ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਨਾਲੋਂ ਫਰੈਸ਼ ਫਲਾਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ। ਫਰੈਸ਼ ਫਲਾਵਰ ਮਤਲਬ ਫਰੈਸ਼ ਪੌਦੇ, ਤੇ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਹੈਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ 2 ਹੀ ਪੌਦੇ ਨੇ ਖੈਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 1 ਦਿਨ 2 ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਜ਼ੀ ਡੰਮ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੱਚੀ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਹਾਂ ਸ਼ਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਐਸੀ ਬੱਚੀ ਹਾਂ। ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਐਸੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਠੀਕ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਓ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਪੌਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨੋਨ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਜਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਟ ਸਭ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟ ਵੱਡੇ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਆ ਕਿ ਸਹੀ ਆ,
पर मेरे इस वक्त दिमाग च गुरु महाराज जी ਉਹੀ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, इसलिए मैं ਉਹੀ बोल रही हाँ। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, सब जग ढूंढा मैंने, मुझसे बुरा ना कोई। ਐਵੇਂ ਹੀ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਬੜੇ ਨੇ, ਬਟ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੇ ਨਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਣੋਗੇ ਦੁੱਖ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਆਣੇ ਨੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਸੈਲਫ ਕ੍ਰੀਏਟਿਡ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਕ੍ਰੀਏਟਿਡ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਉਹ ਨੇ ਨਾ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੈਲਫ ਉਹ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੋਵਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵੀ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਹੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ, ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਸੋਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦੁੱਖ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਕਰਨ, ਉਹ ਕਰਨ, ਮਤਲਬ XYZ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰਾਉਣ, ਮੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ, ਪੈਸੇ ਦੇਣ, ਮਤਲਬ XYZ ਬਹੁਤ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ, ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣ, ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟ, ਫਿਰ ਜਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ, ਇੰਟਰਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦ ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦੁੱਖ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੁੱਖ ਕਿਸ ਦੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਖੁਦ ਦੇ ਸੈਲਫ ਕ੍ਰੀਏਟਿਡ ਦੁੱਖ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਖੁਦ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸੌਰੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਡੰਮ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਬੋਲਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣ ਜੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਟ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸੈਲਫ ਕ੍ਰੀਏਟਿਡ ਦੁੱਖ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਰਾਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਾਉਣਾ, ਹੋਰਾਂ 'ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਚੱਕਣਾ, ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਬਲੇਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਸੈਲਫ ਕ੍ਰੀਏਟਿਡ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਚੱਕਣੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨਾ ਚੱਕਣਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਰਿੰਕੂ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬੈਰ ਆਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਆਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੋ ਉਸ ਵਕਤ। ਔਰ ਉਸਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ, ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੋ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵਸ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਉਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿੰਕੂ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਹੁਣੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਤਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੋਲਤਾ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੁਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਟ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ।
ਰਾਜ ਅੰਕਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਹਰ ਕਣ ਕਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। लव यू गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ आज। मेरी तरफ से, मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरी बेटी आंटी की तरफ से, मेरे बेटे अंकल की तरफ से, मेरे कुत्ते की तरफ से और मेरे माता पिता की तरफ से, जो कि गुरु जी के चरणों में है। और शुक्राना सत्संग में मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना सत्संग ये है कि गुरु जी ने मेरी बेटी को कुछ ट्रिप ब्लेस किया था, तो सॉरी संगत जी, तबीयत ठीक नहीं है इसलिए बीच में खांसी आ जा रही है। तो मैं ये बता रही थी कि गुरुजी ने मेरी बेटी को कुछ ट्रिप बैलेंस ये ब्लेस किया था, तो उसी के सिलसिले में मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी ने उसकी जो ट्रैवलिंग थी, बाय एयर की जो ट्रैवलिंग थी, वो गुरुजी ने अच्छी तरह से सक्सेसफुल करवा दी और बड़े अच्छे से उसका ट्रिप जो था वो पूरा करवा दिया। उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। उसका आना, वापस उसका जाना और फिर वापस आना, जो भी उसका 4-5 दिन का ट्रिप था, वो गुरुजी की मेहर से अच्छे से हो गया। और जहाँ वो गई थी वहाँ पर अब गुरुजी तो घर घर में गुरुजी साथ में रहते हैं, उनको साथ में लेकर ही मैं चलती हूँ। तो जब बेटी जा रही थी तो अब होता क्या है, एक माँ के दिल में तो देखिए 100 तरह के डर रहते हैं। वो अपनी फ्रेंड के साथ गई थी तो भेजने का मेरा इतना इंटरेस्ट तो नहीं था, लेकिन फिर भी क्या होता है, और फॉरेन का ट्रिप था, तो क्या होता है कि आजकल की डेट में ना आप बच्चों को बहुत ज़्यादा रोक टोक भी नहीं लगा सकते, मुझे ऐसा लगता है। नहीं तो फिर बच्चे को ऐसा लगता है कि माँ बाप तो मेरी सुन ही नहीं रहे हैं। तो इसलिए मैं उसको स्टॉप भी नहीं करना चाहती थी, तो मैंने उसको जाने तो दिया, लेकिन मेरे मन में 100 तरह के डर जो थे वो थे। तो गुरुजी को मैंने बोला था कि गुरुजी उसके साथ में रहना, तो उसने मुझे वहाँ से एक फ़ोटो भेजी। तो मैंने देखा कि उसमें कुछ गुरुजी से रिलेटेड ऐसी चीज़ थी कि जो मैंने वहाँ पे देखा कि वो चीज़ थी वहाँ पे, तो सॉरी, तो गुरुजी ने मुझे एक तरह से वो पिक्चर दिखा के गुरुजी ने मुझे ये बोल दिया कि मैं साथ में हूँ, तो ऐसे फ़िक्र मत किया कर। तो दूसरा क्या होता है संगत जी, मेरे घर में बहुत ब्लैक मैजिक जो है वो आता है, तो ना इसलिए भी थोड़ा जो है वो बच्चों को भेजने का डर लगा रहता है कि बच्चों को कुछ हो ना जाए। और मतलब खुद का भी अपना भी डर लगा रहता है कि आज पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन फिर भी होता क्या है कि जब आपने सारा कुछ भगवान के ऊपर छोड़ा हो, गुरुजी के ऊपर छोड़ा हो, तो वही केयर टेकर हैं कि जो उन्होंने आज दिन तक ये सांसें चला के रखी हैं, तो आगे भी वही ध्यान रखेंगे। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है कि गुरुजी ने आप सबसे पहले तो आपने उसको बच्ची को ट्रिप ब्लेस किया, उसके बाद उस ट्रिप को आपने सक्सेसफुल करवाया और उसको जो भी खुशियों के पल दिए उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। इसी तरह से आप पंग संग रहें और इसी तरह से ब्लेस करते रहें। और जो अंकल मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी अपनी ब्लेसिंग्स दें, पूरे संसार के ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। मुझे, मेरे परिवार को अपनी सद्बुद्धि दें कि हम पूरा परिवार आपकी भक्ति में लग सके। अभी तो मेरे सिवा कोई नहीं जुड़ा है, लेकिन बाकी लोग भी घर के आपके साथ जुड़ सकें। मेरे माता पिता को मोक्ष दिलाकर अपने चरणों में रखें। अगर उनकी रूह कहीं पे भटक रही है तो प्लीज़ उनको अपने पास रखें। और बाकी बहुत तरह के सत्संग जो है वो सुनने को मिलते हैं दिन भर में, जिसके कारण थोड़ा मन जो है वो थोड़ा
मतलब फ़िक्र में तो आ जाता है, लेकिन फिर भी आपने अपनी मेहर बना के रखी हुई है। तो इसी तरह से आप अपनी मेहर बना के रखें और प्रभु अंग संग रहें। अगर आप हो तो हम हैं, आप नहीं हो तो हमारी तो सांसें भी आपकी दी हुई हैं। अगर आप नहीं हो तो हम तो ख़त्म है आपके बिना। तो इसलिए यूँ ही हाथ पकड़े रखना। मेरी तो कोई औकात नहीं है हाथ पकड़ने की आपका, मैं तो इंसान हूँ, हाथ पकड़ूँगी छूट जाएगा, तो आपने हाथ पकड़ना है मालिक। आपने अपने साथ लगाए रखना है, अपने चरणों में लगाए रखना है, ऐसी सद्बुद्धि दे के रखनी है कि आपकी भक्ति होती रहे, कभी किसी के हाथ की तरफ देखने की ज़रूरत ना पड़े। जो लोग फ़ाइनेंशियली हमको डैमेज करने में लगे हैं या हमारी हेल्थ के ऊपर अटैक करने में, डैमेज करने में लगे हुए हैं, किसी तरह से भी लोग हमारे जो पीछे पड़े हुए हैं, उन लोगों से हमारी रक्षा करें, हमें प्रोटेक्ट करके रखें। आज दिन तक आप ही ने किया, आगे भी आप ही ने करना है। और ये जो तबीयत है आपको पता है 15-20 दिन से ऐसी खांसी लगी हुई है। अभी तो संगत जी मैंने हॉस्पिटल में दिखाना भी बंद कर दिया है, क्योंकि मुझे पता है ये बार-बार ब्लैक मैजिक के कारण अटैक्स होते रहते हैं। तो मैं तो गुरु जी को भी बोलती हूँ कि आपका जो जल प्रसाद है उसी से ठीक होना है, वही मेरी दवाई है, वही मेरे लिए अमृत है। तो अब गुरु जी की इच्छा है और गुरु जी के ही चरणों शरणों में हम हैं। तो इसी तरह से गुरुजी सत्संग करवाते रहें और सद्बुद्धि देते रहें। कभी भी किसी के हाथ की तरफ देखने वाला ना करें। फ़ाइनेंशियल ऐसी बरकत रखें, कारोबार में खुद गुरुजी हैंडल करें। हम लोगों को देने वाले बने, लाइक हम तो देने वाले कौन होते हैं, लेकिन परमात्मा ऐसी सद्बुद्धि रखे कि हम दूसरों की मदद कर सकें, नीडी की, और हमें कभी किसी के हाथ की तरफ ना देखना पड़े। इसी के साथ मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा ये शुक्राना सत्संग है आज का। संगत जी मुझे 3-4 दिन हो गए थे बुखार में पड़े हुए और मैं आज सत्संग शेयर नहीं कर पाई थी। गुरु जी का मैसेज आ रहा है कि बेटा शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो संगत जी मैं अपना आज का ये शनिवार का 11:37 हो रहे हैं दोपहर के, सुबह के टाइम का है ये, और अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं। जय गुरु जी, सागुरु संगत जी को जय गुरु जी। और शुक्राना सत्संग की शुरुआत में गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत। गुरु जी कहते हैं कि बेटा तुझे बहुत जल्दी नज़र लग जाती है, इसके लिए शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। और गुरु जी उसके लिए उपाय बताते हैं कि बेटा 7 बारी नींबू को आधा काट के उसमें नमक लगा के अपने ऊपर से 7 बारी बार कर उसे गैस पे जला दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरी बेटी को भी संगत जी बहुत नज़र लगी हुई थी, उसको मैंने ये ऐसे किया तो उसके बाद वो मेरी बेटी ठीक हो गई, उसको भी बहुत बुरी नज़र लगी थी। जय गुरु जी। और संगत जी मुझे बुखार भी हुआ और बुखार में मैंने अपने दवाई भी ली, गुरु जी का जल प्रसाद भी किया। और संगत जी मैंने उससे मुझे कुछ आराम हुआ, लेकिन मेरी कल के टाइम दिन में मेरे को एकदम से मेरे रीढ़ की हड्डी में बहुत पेन हुआ। मेरे को ना तो इधर उधर लेटी जा रही थी, ना खड़ी हो पा रही थी। संगत जी बहुत परेशानी हो रही थी। मैं गुरु जी से अरदास करने, गुरु जी मुझे ये क्या हो गया एकदम से, मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगी, ऐसे मैं बहुत परेशान हो जाऊंगी। तो संगत जी मैंने बहुत गुरु जी से अरदास करी कि मुझे ठीक कर दो गुरु पाप, मैं पैर पे पड़े नहीं रह जाती, क्योंकि मुझे बहुत काम है, घर के भी हैं बाहर के भी। गुरु जी संगत जी मुझे बहुत काम रहते करने पड़ते हैं, बच्चे पढ़ने लिखना आता है, उनसे इतना काम नहीं होता। संगत जी पति अंकल भी बाहर चले जाते हैं, इसलिए मेरे को ही करना पड़ता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी मैं कल सवेरे पहले तो बुखार की दवाई ली तो उससे मेरा आराम हुआ। फिर संगत जी मैंने कल अपनी रीढ़ की हड्डी की भी दवाई लेकर आई और मैंने
फिर रात को दवाई खाई और मैंने गुरुजी का जो जल प्रसाद है अपनी रीढ़ की हड्डी में भी लगाया। जय गुरुजी शुक्राना। और मैंने जल प्रसाद से दवाई भी ली और संगत जी मेरी रीढ़ की हड्डी में काफ़ी आराम हो गया। नहीं तो लोगों की कई कई दिन तक रीढ़ की हड्डी ठीक नहीं होती। जिस डॉक्टर से मैं दवाई लाई वो खुद रीढ़ की हड्डी से संगत जी परेशान था। वो कह रहा मुझे काफ़ी दिन हो गए मुझे आराम नहीं आ रहा, लेकिन संगत जी की गुरु जी की कृपा से मुझे रीढ़ की हड्डी में काफ़ी आराम है और मैंने आज अपने घर का काम भी किया। उसके लिए शुक्राना गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, हाँ, गुरु जी से गुरु जी जो भी बोलते हैं कि भाई तुम्हारे कुल देवी अगर नाराज हैं। संगत जी पता नहीं किस कारण मैंने अमावस नहीं काट पाई। मैं अमावस से एक दिन पहले ही बुरी तरह बुखार में पड़ गई। पता नहीं किसका काली तंत्रिक क्रिया करी मुझे नहीं पता। तो गुरु जी ने कहा कि जो लोग ये तेरे पे कुछ कर रहे हैं उनको मैं खुद देख लूंगा, तू चिंता ना कर। मैं गुरु जी से ये कहती हूँ कि आप ही देखो, हमें नहीं पता आजकल के टाइम पे कौन क्या वैर भाव हमसे निकाल लेता है, हमें कुछ समझ नहीं आता संगत जी। और मैं मांस भी नहीं काट पाई और ना ही मैंने मंदिर में दान दिया। उसके लिए मुझे माफ़ करना गुरुपा। बिल्कुल भी मेरी हालत नहीं थी, ना मैं किसी बच्चे से बोल रही कि मंदिर में जाके ये दान करके आ जाओ। गुरु जी से मैं माफ़ी मांगती हूँ, अपने पितरों से भी माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे ना ठीक ठाक रखा करो। अगर आपको भोग लेना हो तो मावस पे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। और मेरे घर में बच्चों पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुपा। संगत जी छोटा बेटा पेपर देने गया था, गुरु जी से मैं नाराज करी थी कि गुरु जी आप उसके साथ जाना और उसको पेपर को सही से करवा करना। जय गुरु जी, शुक्राना। जब बेटा आया तो गुरु जी की कृपा से बेटा कहता है मम्मी पेपर मेरा अच्छा मैंने शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी। और अपने कुल देवी पितरों से भी मैं माफ़ी मांगती हूँ, जाने अनजाने जो भी मुझसे गलतियाँ हुई है या मैंने अवॉइशन करा इसके लिए मुझे माफ़ करना। पितृदेव से भी माफ़ी मांगती हूँ। और जय गुरु जी, शुक्राना जी, अपनी माँ कुल देवियों से भी माफ़ी मांगती हूँ। और संगत जी गुरु जी की कृपा से हमारा एक छोटा सा काम लगता है कि बन जाएगा। गुरु जी का आशीर्वाद मिला तो वो काम जल्द ही पूरा होगा, तो मैं अपना वो सुखी सत्संग जरूर शेयर करूँगी। जय गुरु जी। गुरु जी कहते हैं कि जब तक पूरा काम ना हो, जब तक कुछ किसी को नहीं कुछ कहना, उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। जय गुरु जी, बराबर जी। और गुरु जी देखो कल परसों में छत पे अपने लेटी हुई थी, धूप सेक रही थी ताकि मैंने कहा कमर को भी और बुखार में मुझे थोड़ा सा आराम मिल जाए। तो एक इतनी बड़ी बटरफ्लाई आई और वो मेरे ऊपर से होके गई। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। और मुझे काफ़ी आराम हुआ है उसके लिए। उसके बाद जय गुरु जी, शुक्राना दे पूरी संगत को। जय गुरु जी, शुक्राना। अगर मुझसे सत्संग बोलने में कोई भी गलती हो गई तो मुझे क्षमा करना संगत जी। और गुरु जी जो भी मेरे ये राज अंकल जी शेयर करना उनको ब्लेस करना, ये पूरे परिवार को, पूरी संगत परिवार को ब्लेस करना, उनके सभी बच्चों को कामयाबी देना, पूरे संगत और अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही सब संगत पर को बनाए रखना। गुरु जी मुझे बड़े मंदिर भी बुला रहे लेकिन मेरा जाना नहीं हुआ। अब गुरु जी कह रहे हैं कि बेटा तू अपने साल मेरे साथ ही बनाए, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। मैं जरूर आऊँगी आपके मंदिर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस मुझे ठीक ठाक रखना। मैं चाहती हूँ कि मेरे पति अंकल भी आए आपके साथ, उसके लिए पूरी मैं आपसे कहती हूँ उनका मन बदलें ताकि वो आपके दरबार आ सकें। जय गुरु जी, शुक्राना। अनंत अनंत जय गुरु जी, शुक्राना। और संगत जी गुरु जी से अरदास है कि मेरे बड़े बेटे को थोड़ी सी बुद्धि दे, वो थोड़ा सा कहना नहीं मानता। कभी तो बहुत अच्छा हो जाता, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ सुनता ही नहीं है। उसके लिए गुरु जी से अरदास करती हूँ कि उसे ठीक ठाक रखें और जो भी कोई उसके में है उसे दूर करें, उसके मन में जो भी कुछ ऐसा है। जय गुरु। और मेरी सास को भी ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना, शुक्राना। उनको नया जीवन देने के लिए शुक्राना, मुझे भी नया जीवन दिया उसके लिए शुक्राना। क्योंकि संगत जी मैं बिल्कुल बेड पे सोने में मुझे समझ नहीं आया था कि मुझे क्या हुआ। एकदम से मैं बेड पे सर्दी लग के मुझे बुखार चढ़ा और इतना बुरा चढ़ा कि मुझे होश नहीं। जय गुरु। और मैं दवाई लेके अब काफ़ी आराम है, इसलिए शुक्राना गुरु जी का मैं शुक्राना अदा कर रही हूँ। गुरु जी क्योंकि कह रहे कि शुक्राना कर दे, शुक्राना कर दे, मेरे पास बैठ और शुक्राना कर। जय गुरु जी। तो मैंने संगत जी गुरु जी के पास ही बैठी हूँ और अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया। जय गुरु जी। मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में स्वीकार करें। जय गुरु जी, शुक्राना अनंतम। जय गुरु। मैं अपने सत्संग यहीं विराम देती हूँ और मुझसे और आगे सत्संग की तैयार करती हूँ। जय गुरु जी। मैं दिल्ली की संगत हूँ और राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। जय गुरु जी, जय शुक्राना। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।
सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। मैं इंदु गिरधर कमला नगर दिल्ली की रहने वाली हूँ। और संगत जी सबको जय गुरु जी। संगत जी आज मैं अपना शनिवार का शुक्राना सत्संग गुरु पाक के चरणों में समर्पित करने जा रही हूँ। और संगत जी आज वार है शनिवार और तारीख है संगत जी 22 नवंबर और समय हो रहा है सुबह के 10:45। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु पाक के मूल मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पा, शुक्राना पल पल का शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु पा, शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु पा, शुक्राना कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी शुक्राना सत्संग शेयर करते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना और गुरुपा आप भी मुझे माफ कर देना अगर शुक्राना सत्संग शेयर करते समय कोई गलती हो जाए तो। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। संगत जी इस समय मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठकर अपना शनिवार का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जो मुझसे गुरुपा बुलाएंगे वो मैं बोलूंगी। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। संगत जी आज तो सुबह मैं अमृत वेले में उठी ही नहीं, मेरी नींद ही नहीं खुली। सुबह 7:45 शायद यही टाइम होगा संगत जी मेरी नींद खुली। और फिर मैंने उठ के गुरुपा का शुक्राना किया और मैंने मंत्र जाप पढ़ा और फिर मैंने आज रामायण का पाठ भी किया। और संगत जी आज मैंने रामायण का भोग डाला है और मैंने शिव पुराण का पाठ भी किया। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आज मैं रात को सो रही थी तो गुरुपा मेरे सपने में आए और कहते हैं आंटी अपना पैर सीधा कर ले। तो जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। संगत जी मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं और क्या ना बोलूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो संगत जी मैं तो गुरु पास से यही प्रार्थना है कि वो अपनी सारी संगत को ब्लेस करे और सबके घर में खुशियां आती रहे और राज अंकल भी को भी गुरुपा बहुत 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 ब्लेस करे और उनके घर भी खुशियां आती रहे। जय जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आज सुबह गुरुपा को चाय का भोग लगाया और चाय के भोग में बिस्किट और थोड़ा सा संगत जी ड्राई फ्रूट का भोग लगाया और वही चाय संगत जी मैंने पी। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। गुरुपा शुक्राना सत्संग शेयर करते समय
कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। संगत जी, मैं अब अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ और अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने गुरु चरणों में समर्पित करने से पहले मैं गुरुपा के मूल मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, मेरा शुक्राना सत्संग आपके चरणों में समर्पित है और आप इस शुक्राने सत्संग को स्वीकार करना। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना 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 बेअंत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में शेयर करना चाहूँगी। संगत जी, गुरु जी की बेटी कानपुर से बोल रही हूँ। गुरु जी के महामंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के कई दिनों से मैसेज आ रहे थे, मेरी बेटी तुम भी अपना ख्याल रखा कर, अच्छी विटामिन वाली दवा खाया कर। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया, बेटी आज जो बड़ा खतरा आना था वो मैंने टाल दिया। खतरा टालने का शुक्राना मेरे पिता। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल मेरे यहाँ जिस कमरे में गुरु जी का कैलेंडर टंगा है उसी कमरे में एक बटरफ्लाई बैठी थी। संगत जी, मैं किचन में थी, मेरे पति अंकल उस कमरे में गए तो वो उड़कर दूसरी जगह बैठी। संगत जी, पति अंकल बोले गुरुजी आ गए। संगत जी, मैं किचन से दौड़कर गई। मैंने कहा कहाँ हैं गुरुजी, तो देखा दरवाजे पर बैठी थी। मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने उसके पास जाकर देखा तो वो मुझे कुछ सुस्त सी नजर आई। मैंने बाहर की हवा आने के लिए दरवाज़ा खोल दिया, शायद बाहर की हवा देखकर वो बाहर चली जाए, मगर संगत जी वो वहीं जाली के दरवाजे पर बैठी रही। संगत जी, मुझे लगा यह सुस्त है, लाओ इसको गुरु जी का जल प्रसाद पिला दें। संगत जी, जैसे ही मैंने उसको जल प्रसाद पिलाया, संगत जी वैसे ही वो उड़कर मेरे गले के पास बैठ गई। संगत जी, वो करीब आधा घंटा तक ऐसे ही बैठी रही। हम अपना काम करते रहे। फिर उड़कर वो आंगन में दीवार पर बैठ गई। रात को करीब 9 बजे हमने देखा, संगत जी वो बेसिन के पास मरी पड़ी है। संगत जी, मुझे बहुत ही दुख हुआ। पता नहीं गुरुजी ने कौन से मेरे कष्ट अपने ऊपर ले लिए। संगत जी, जितनी मैं गुरुजी के आने से खुश थी उतना ही मुझे दुख हुआ। सारे कष्ट गुरुजी ने अपने ही ऊपर ले लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो भी आंटी अंकल मेरे सत्संग को शेयर करें, गुरुजी उनके परिवार को ब्लेस करिएगा। इतनी प्यारी सेवा करने के लिए संगत
मेरे सत्संग बहुत ही लंबा हो रहा है। अब मैं गुरु जी के महामंत्र जाप से विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। संगत जी गुरु जी से रोज ही गुरु जी तो रोज ही सत्संग करवाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा जय सहाय। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मैं आपसे प्यारे बेटी शुक्राना शेयर करूंगी। इसके पहले पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। पाया तेरे दर तुम्हें, पाया तेरे दर तुम्हें, रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा दाता, शुक्र गुजारा। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। छोटा सा नाम है मेरे गुरु जी का, छोटा सा नाम है मेरे गुरु जी का, लेकिन दिल से जप लोगे तो बड़े बड़े काम होने लगेंगे, बड़े बड़े करिश्मे होने लगेंगे। ये है मेरे गुरु का दरबार, ये है मेरा गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गरीबों का दाता, दुखियों का सहारा है मेरा गुरु जी प्यारा। पल पल अपने भक्तों की रहमत और पल पल अपने भक्तों की रक्षा करने वाला, पल पल अपने भक्तों का ध्यान रखने वाला, पल पल अपने भक्तों को निश्चिंत और दुख दर्द कष्टों में से बाहर निकालने वाला। संगत जी, हम बहुत भाग्यशाली है, हमें हमारा गुरुपा महाशिव जी परमात्मा के रूप में मिले हैं। सही में कोटि कोटि शुक्राना है दाता, जो आप हमें मिले हो परमात्मा। संगत जी, अपना परिवार, संगत परिवार, गुरु परिवार और सभी संगतों का परिवार जो है, ये परमात्मा ने संभाल लिया है और परमात्मा हर पल हर क्षण हमारे साथ रहते हैं, उसका एहसास भी दिलाते हैं। इसके लिए बाबा आपके चरणों में कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी का स्वर्ग समान पावन धाम, बड़े मंदिर, जो हमें बेटियों को मायके के रूप में दिया है, सभी संगतों का आसरा, सहारा, जो दर दिया है, जो दर पे जाके मत्था टेके और मन में भाव से परमात्मा के चरणों में मस्तक झुका ले, तो प्यारे गुरु का सब कुछ जान जाते हैं, हमें बताने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। और प्यारे गुरु का उसका हाथ थाम के उसे अपना संगत बना लेते हैं और हर पल हर क्षण उसकी रक्षा भी करते हैं। है कोई ऐसा गुरु जी इधर? है कोई ऐसा गुरु हमारे गुरु जैसा? इस कलयुग के जमाने में सब ठग भगत अपने अपने दुकान खोल के बैठे हैं और सबको वहमों में डाल के पैसे लूटते हैं, जो दुखी है उसको और दुखी कर देते हैं। लेकिन हमारा गुरु सिर्फ और सिर्फ
दिल से प्यार करो और दिल से पुकारो, दिल से मस्तक चरणों में झुका दो, तो परमात्मा उसके आंसुओं को मोती में बदल देते हैं। जब किसको रोना है ना, जब किसी को अपना दुख दूर करना है ना, तो बड़े मंदिर के दरबार में जाकर एक बार मत्था टेक दे, तो परमात्मा उसका बेड़ा पार कर दे। हे गुरुदेव, आपके चरणों में है, नतमस्तक हूँ, हमेशा रहूंगी, आपके चरणों की सेवा हमेशा करती रहूंगी, और आपके चरणों में ही स्वर्ग है बाबा, और आपका चरणों में मुझे बिठाने का, अपनी बेटी बनाने का, संगत बनाने का कोटि कोटि शुक्राना दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा, आपका कड़क आदेश आया, जहाँ है अभी शुक्राना कर, तेरी चिंता होने लगी सी, बात मखौल में न उड़ाई। नहीं बाबा, आपकी बात कोई भी मैं मखौल में न उड़ाऊं दाता, इसमें भी आप मेरा ही कल्याण कर रहे हो दाता, सब कुछ हमारे लिए कर रहे हो बाबा, तो आपका मैं शुक्राना करूं उतना कम है। और जो आप कर रहे हो, कौन है हमारा दाता, आपके बिना कौन है, जिनके लिए हम पूरी जिंदगी मर गए वो भी हमारे नहीं है दाता, और आप परमात्मा जो हमें मिले हैं बाबा, जो आपने हमें हाथ थाम के अपना बनाया, तो गुरुजी आपको भूलने का तो सपने में भी सोच नहीं सकती हूँ बाबा। मैं पल पल जैसे जैसे मैं समय मेरा जाता गया, पहले मैंने बहुत गलतियां कर दी समझने में, सब करने में, लेकिन अब कभी ना करूँ, और अभी एक पल में आपको बिसरूं भी नहीं, और एक पल में आपको मेरे से दूर भी नहीं जाने दो बाबा। हर पल मेरे साथ और हर पल मेरे साथ रहना है बाबा। मैं आपके बिना जीना भी सोच भी नहीं सकती हूँ दाता, आपके स्वरूप के सामने बैठ के ही बोल रही हूँ। मैंने कुछ भी नहीं तय किया मैं क्या बोल रही हूँ बाबा, बस जैसा आप बुलवाओगे वैसा बोल रही हूँ। और गुरु जी, संगत जी, सही में मैं तो गुरुमय हो ही गई हूँ। उनकी पूजा पाठ और वो करना हमारी हैसियत नहीं है, लेकिन परमात्मा ने जब अपना बच्चा बनाया ना, तो बच्चा कैसा भी है उसका भाव परमात्मा जान जाता है, और हमारा गुरु पिता सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है, मन के अंदर की बात भी जानता है, सब कुछ जानता है। और मेरे प्यारे गुरुपा, आपके चरणों में बैठी हूँ और बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार कर, दिन ब दिन मेरा विश्वास बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इसके लिए भी आपका शुक्राना है मेरे दाता, इसके लिए भी नसीब लगता है बाबा, आपके चरणों में बैठने का भी हमारा भाग्य लगता है, तो कुछ भी तो होगा, तो आपने हमें बिठाया है दाता, उसके लिए भी आपका शुक्राना बाबा। आपने आशीर्वाद दिया, तू कह भी नहीं पाया और मैंने तेरी मन की बात सुन ली। आज शाम को तेरा एक काम ऐसा बनेगा जो तेरे विश्वास को और गहरा कर देगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी दाता, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। बस एक बार दिल से शुक्राना कर और किसी जरूरतमंद तक ये संदेश पहुंचा दे, तेरे जीवन में करिश्मे होने लगेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, जरूर पहुंचा दूंगी दाता, आपका आदेश का पालन करना मेरा काम है बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा आगे आपने ये भी कहा है, जिन्ना नू तेरी कदर नहीं है उन्ना दे पीछे कमला ना बनिया कर, मैं तेरा मुकद्दर एवे भी बदल दवांगा कि ओ तेनू खुद मिलन नू तरसेंगे। तू अपना सच्चाई दा रास्ता न छड्डी, सच्चाई दो हमेशा ही जीत होंदी। पुत्र शुक्राना कर दी रे, कल्याण की तजा ऐश कर बाबा। कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, आपकी ये कृपा, आपका ये आशीर्वाद के लिए हम तरसते हैं बाबा, बहुत तरसते हैं, लेकिन आप हमें मांगने से पहले ही दे देते हो बाबा, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि शुक्राना। हर दम हर पल शुक्र गुजार करूँ बाबा, हर पल हर पाया तेरे दर्दों में, पाया तेरे दर्दों में रहमता हजारा, शुक्र गुजारा दाता, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा दाता,
शुक्र गुजारा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पल पल शुक्राना बाबा। सबका भला करो, सबका कल्याण करो और आपके आदेश का पालन करूं, आपके बताई राह पे चलो, आपके वचनों पे खरी उतरूं और सबका कल्याण ही कल्याण सबका भला सोचूं और सेवा के काम जो भी आप दोगे वो करूं। और बाबा आज आपने जो भी थॉट डाला होगा मेरे से, जो भी आपने करवाया वो सेवा की है मैंने, मुझे वो बोल के नहीं बताना है, लेकिन मन में जो आया मैंने कर दिया है बाबा। इसके लिए भी आपका शुक्राना, वो आपका है, मेरा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। लव यू गुरु जी, थैंक यू सो मच मेरे बाबा। जय गुरु जी, जय गुरु।